So, up now, is there anything that anybody would like to add on to the lecture, or anything that we are confused about, anything that we need to go through again? Or should I take that everything is crystal clear? Crystal clear then? सर आप इतना डिटेल में बता देते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो ही जाता है. चलिए ठीक है सर. So let's go ahead then. Let's do a quick recap. जितने में बाकी लोग भी फिर ज्वाइन कर लेंगे. Let's see what all chapters we have covered and उन chapters में क्या क्या है. So with me, if everybody could just try to recollect what we have done. So section 1 से लेके section 4 तक we have the introductory sections. They talk about the applicability, the various definitions, may presume, shall presume, etc. Then we come to 5 से लेके 16 तक. These are the provisions that tell us about relevancy. Facts that are relevant to prove certain facts, or facts that we can bring about to the court to explain, to rebut, to make probable, और ऐसी चीजें, ये सारी हमने 5 से लेके 16 तक देखी. 5 से लेके 55 तक मेनली रेलेवेंसी के प्रोविजंस हैं, उनके अंदर सब चैप्टराइजेशन है. ये पहली सब चैप्टराइजेशन है जो है 5 से लेके 16 तक. देन फ्रॉम 17 to 21 we see who all can come and make admissions. Then came 22, which talks about whether we can give oral accounts of the contents of documents or not. And then comes 23, which is without prejudice notices, जो सिर्फ सिविल पे ही अप्लाई करता है. Then 24 से लेके 29 तक हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जहां पे एडमिशंस कभी रेलेवेंट होंगे और कभी नहीं होंगे. जैसे पुलिस वालों के सामने नहीं होंगे, and when you are under an influence तब नहीं होंगे, but secrecy and deception will not make them irrelevant. Then after 29 we come to 30, which is about joint trial, and then 31, which talks about admissions only as putting an estoppel on you and not being conclusive proof. After this we come to 32 and 33. These two sections talk about situations where we cannot find the person who has to give the admission or who has given the admission. What do we do in that cases? So dying declaration वगैरह वगैरह हमने इसमें देखा, subsequent proceedings. Then we come to special circumstances, which start from 34 and they end at 38. तो entries किसी ने डाली हैं books में, official duty के तहत डाली हैं, books, maps and charts हैं, law books हैं. ये सारी चीजें हमारी सेक्शन 34 से लेके 38 के बीच में आती है. So these are also relevant admissions, though they are not statements made by certain people in the court. Then comes 39, जो हमें बताता है कि अगर बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी बातचीत है, तो उसमें से आपको कितना पार्ट कोर्ट में लेके आना है. So we only have to bring to the court the part which is relevant to the matter. Then comes 40, which is the rule of double jeopardy. Then 41, 42, 43, 44. 41 से लेके 43 तक तो ये बात हुई है कौन कौन सी जजमेंट्स रेलेवेंट होती है. 41 में कुछ जजमेंट्स को कंक्लूसिव प्रूफ बनाया गया है. PMIA, प्रोबेट, मैट्रिमनी, एडमिरल्टी, प्रोबेट, मैट्रिमनी, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी. देन 41, 42, 43 बाकी जजमेंट्स की बात करते हैं. 44 कंक्लूजन कॉल्यूजन एंड फ्रॉड की बात करता है. Then we come to 45 से लेके 51, जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं. तो अभी तक हम बात करते आ रहे थे उन स्टेटमेंट्स की जो कोई एक आदमी प्राइवेट कैपेसिटी में आके देता है. नाउ दीज आर थर्ड पर्संस जो रूल ऑफ हियरसे को डिफाई करते हैं और उनका एक्सेप्शन. थर्ड पर्सन कम्स टू द कोर्ट एंड टेल समथिंग व्हिच इज रेलेवेंट. सो उसमें क्या होता है? दीज आर द एक्सपर्ट्स हु कम टू द. So 45 से लेके 51 तक. 45 is opinion of the experts, 51 is grounds for the opinion of the experts. उसके बाद हमने देखा about character. Character कब कब relevant होगा? 52 से लेके 55 तक. Section 52 talks about character in civil cases, and 55 talks about character when there's a case when we have to assert damages. बीच के जो 2-3 sections हैं वो criminal cases के ऊपर बात करते हैं.
यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट का. वी मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज ऑफ प्रूफ. इसमें हम सेक्शन 56 से पहला चैप्टर लेके चलते हैं. 56, 57, 58 talks about things that you don't have to prove. Some things that the court will take judicial notice of. Section 56 उनकी लिस्ट दी गई है 57 में, और 58 में बताया गया है कि whatever has been admitted that you don't have to prove. Then we come to 59 and 60 जो oral evidence की बात करते हैं. Oral evidence हमेशा direct होना चाहिए. 59, 60 ये बताते हैं. Then we come to 61 से लेके 65 that talk about documentary evidence. So 61 हमें जनरल क्लॉज बताता है कि आप या तो प्राइमरी से प्रूव करो, सेकेंडरी से प्रूव करो. 62 हमें प्राइमरी की डेफिनेशन देता है, 63 हमें सेकेंडरी की देता है. 64 हमें बताता है कि प्राइमरी कब कब लाया जाएगा, और 65 बताता है कि सेकेंडरी कब कब लाया जाएगा. सो 1, 2 एंड 2 के हमने पार्ट्स बनाए. 65 के बाद हमने देखा 66 जिसमें नोटिस टू प्रोड्यूस है. उससे पहले 65A B जो है वो सर्टिफिकेट बनाना फॉर ई एविडेंस. 66 is notice to produce. You have to give a notice to produce to the other party, and there are certain situations when you don't have to give that notice. For example, जब notice ही बुलाना हो, जब उसने कह दिया है कि fraud and force से लेके गया है, ये सब चीजों में आपको notice नहीं देना होता. ये हो गया हमारा 66. उसके बाद हम कुछ rules पे आते हैं जहाँ पे हमें proving के कुछ very exceptional situations they have given us and they have told us कि इन situations में आप कैसे prove करोगे. So 67 talk to us about proving documents जो law के द्वारा required है to be attested. There you have to bring one attesting witness at least. Sorry, ये हो गया handwriting पे. 67 हो गया handwriting पे. 68 is where the law requires a certain document to be attested. वहाँ पे you have to bring one attesting witness at least. Then comes 69 जब आपको attesting witness मिलता ही नहीं है. Then comes 70 where there's an admission by the person who executed the document. Then comes 71 where there is a denial by the witness who has attested the document. Then comes 72 जहाँ पे required by law नहीं है to be attested, तो उसको आप किसी भी तरह से कर सकते हो. आप handwriting से करो, signature से करो, जो मर्जी करो. Then comes 73, 74, 75 ये सारे हमारे 73 में handwriting की comparison है. 74 में हमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है. 75 में हमें प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में हमने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी थी. फिर 77 एंड 78 आ जाते हैं प्रोविजंस दैट अगेन टॉक अबाउट सर्टिफाइड कॉपीज. कहाँ से सर्टिफाइड कॉपीज लोगे, कैसे प्रूव करोगे एंड ऑल दैट. यहां तक आई होप एवरीथिंग वाज क्लियर. अगर कोई क्वेश्चन है दैट वी नीड टू आंसर और समथिंग दैट वी नीड टू talk about again, then we can talk about it right now, or else I'll move on to the next subchapterization which is about presumptions. Okay, so I see no hands raised. Let's move on. अब जो हमारा next part है वो है presumptions के बारे में. अभी तक हमने बड़ी सारी चीजें देखी जहाँ पे हमें लॉ बोलता आ रहा है कि आप ये प्रूव करो, आप वो प्रूव करो, आपको खुद आके प्रूव करना होगा, या certain people can come and prove, certain third persons can come and prove. There's a certain way to prove certain documents. बीच में हमने एक पार्ट देखा 56, 57, 58 जहां पे हमारा बर्डन हल्का किया गया. कोर्ट ने हमारा बर्डन हल्का किया क्या कह के कि एडमिटेड फैक्ट जो है उन्हें प्रूव मत करो, जुडिशियल नोटिस जिनका ले लिया है उन्हें प्रूव मत करो. इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं 79 से 90A तक वेयर बाय द लॉ इज एक्चुअली रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन आवर शोल्डर्स. किस तरह से? थ्रू प्रिजम्पशंस. Presumptions क्या होती हैं? Now presumptions is whenever the court is allowed to presume certain facts. Normally, any fact that you assert in the court, the burden of proving that fact is on you. So you have to bring cogent evidence in the court to prove that evidence. Prove whatever you are asserting. ये हमें general rule दिया हुआ है. Section 101 and 102 burden of proof के general rules हैं कि जो भी assert करता है, जो भी कहता है कि फला फला इंसान ने ए या बी ने चोरी करी है, तो वो ही आके प्रूव करेगा कि बताओ कैसे चोरी करी है. मगर इन सिचुएशंस में हमें कुछ प्रिजम्पशंस दे दी जाती हैं. तो कोर्ट कभी कभी क्या करेगा कि कुछ फैक्ट्स को प्रिज्यूम करके बैठ जाएगा कि आपको इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपने मान लिया, पहले ही मान लिया, आप इसके आगे की बात करो.
या फिर ओनस शिफ्ट कर देगा कि चलो अब एडवर्स पार्टी पे डाल दो, वो प्रूव करेंगे। ठीक है। नाउ प्रिजम्पशन जो है वो तीन तरह की होती है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ हमें सेक्शन 4 में दिया हुआ है। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो मैं एक बार आप लोगों को उस पर लेके जाना चाहूंगा। तो सेक्शन 4 खोल लेते हैं एक बार सब लोग, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मे प्रिज्यूम। मे और शैल का डिफरेंस, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी हु इज कंफ्यूज्ड बिटवीन देम। मे इज व्हेन यू हैव अ डिस्क्रिशन, shall is when you don't have a discretion, and conclusive proof is when you don't have an option. Now मे में क्या होता है कि कोर्ट कह सकता है कि इसको प्रूव करो, हम नहीं मान पा रहे, इसको हमें समझ नहीं आ रही बात। शैल में कोर्ट को चुपचाप प्रिज्यूम कर लेना होता है, बट द अदर पार्टी हैज एन ऑप्शन दैट द पार्टी कैन रिबट व्हाटएवर हैज बीन asserted। एक ऑप्शन होता है। और कंक्लूसिव प्रूफ में किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और प्रूफ नहीं लेके आ सकते। मे प्रिज्यूम क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप लेके चलो सेक्शन 88 एंड 88A। अब वहां पे प्रिजम्पशन क्या है कि अगर मैंने व्हाट्सएप पे नंदिनी को कोई मैसेज भेजा है, तो कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट व्हाटएवर मैसेज वाज फेड इनटू माय डिवाइस, वही सेम मैसेज नंदिनी तक पहुंचा है और उसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है। यहां पे कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगा। कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर सकता है, चाहे तो ना करे। शैल प्रिजम्पशंस कौन सी होती हैं जो हम देखते हैं 113A 113B। 7 साल के अंदर किसी अगर महिला की डेथ हुई है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हुई है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हुई है, उसके साथ क्रूएल्टी हुई थी, अगर ऐसी चीजें हुई हैं तो वहां पे एक शैल प्रिजम्पशन बन जाती है। कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही करना है कि ये एक डाउरी डेथ। ठीक है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम और फिर उसके बाद कंक्लूसिव प्रूफ में 3 वर्ड्स का डिफरेंस देखो। मे प्रिज्यूम कहता है व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। मे प्रिज्यूम कहता है व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, उसको आप मार्क कर लो। शैल प्रिज्यूम कहता है व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो पहले इट इज प्रोवाइडेड, there's just a provision, then there is a direction, that you are under a direction, you don't have a discretion. So may presume में it is provided, shall presume में it is directed, and conclusive proof में it is declared। हमने डिक्लेयर कर दिया, इसके आगे कोई बातचीत ही नहीं है, खत्म, टाटा। सो कंक्लूसिव प्रूफ कैसे कैसे होते हैं, उस दिन हमने बात करी थी। सेक्शन 112 इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 41 इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 113 इज अ कंक्लूसिव प्रूफ, और एक कंक्लूसिव प्रूफ की बात हमने सीआरपीसी में करी थी, एनीबॉडी रिमेंबर्स। जी जरा इसको दोबारा बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ में कौन कौन से सेक्शन बोले आपने? सर सेक्शन 112, हाँ 113 एविडेंस एक्ट का ही है ये, हाँ 41 एविडेंस एक्ट का, हाँ। एंड अब मैं पूछ रहा हूँ सीआरपीसी में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे हमने कंक्लूसिव प्रूफ की बात करी थी। प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड है, प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड 87 दूर चले गए सर। 87 में तो आप नहीं 87 में तो वो है वारंट्स इन ल्यू ऑफ समन्स इन ल्यू ऑफ वारंट्स। 87 नहीं है, 87 अलग है। 82 एंड 83 में प्रोक्लेमेशन होती है, 82-83 होता है ना। सो 82 में लिखा हुआ है कि whenever there is a proclamation, then it will be conclusive, it will be a conclusive proof of the fact that procedure follow हुआ था प्रोक्लेमेशन का। तो आप अभी नोट कर लो, बाद में इसको आप चेक कर लें। इन चीजों पे क्वेश्चन बनता है। सो आपको एक ब्लैंक दे देंगे एंड दे विल से मे प्रिज्यूम में क्या लिखा है कि whenever it is provided है, या डायरेक्टेड है, या डिक्लेयर्ड है, या none of the above है, या either of the above है। तो you'll get confused कि प्रोवाइडेड होगा या डायरेक्टेड होगा या डिक्लेयर्ड होगा। ज्यादातर लोग डायरेक्टेड लगाएंगे बिकॉज दे वुड थिंक दैट लॉ हमसे कोई रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, प्रोविजन लगा के थोड़ी छोड़ देगा।
law would direct us, but may presume में it is a provision they are providing. Shall में it is a direction. Conclusive proof में it is a declaration. No if, no but, only proof, conclusive proof. ठीक है, so ये तो बात हुई हमारी may presumptions के बारे में. अब शुरू करते हैं कुछ. अच्छा, ये जो प्रिजम्पशन है 79 से 90, उसके बाद आगे भी हमारे पास प्रिजम्पशन है. सो वो 113, 114, वो सारी चीजें, इनसे कंफ्यूज मत करना. सो व्हेनेवर समवन टॉक्स अबाउट प्रिजम्पशंस इन एविडेंस एक्ट, दीज आर द प्रिजम्पशंस इन एविडेंस एक्ट प्राइमरीली. देन बाकी आगे बर्डन ऑफ प्रूफ में अलग से प्रिजम्पशंस भी आती हैं, बट वो पार्ट अलग चैप्टर का है. ये जो चैप्टर है इसका नाम ही क्या है? प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स. समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन दे कैन आस्क दैट वेयर डू यू फाइंड द प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स. So presumptions as to documents are in 79 to 90A. As to documents हैं 113A, 113B, 114, 114A, 100 whatever. All those presumptions, they are about different special circumstances. ठीक है? Let's go ahead. अब बात करते हैं 79 की. ये ऐसे कुछ provisions हैं जिनको बहुत हद तक इग्नोर किया जाता है. इग्नोर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इग्नोर इसलिए किया जाता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि कई बार समझ नहीं आते. सो वी जस्ट ट्राई टू ब्रिस्क थ्रू देम बिकॉज इनके पूरे कॉन्सेप्ट में जाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें. बट वील ब्रिस्क थ्रू ऑल दीज सेक्शंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट देयर इज. सो पहला है 79. अच्छा, ये याद रखना, इनमें कुछ प्रिजम्पशंस शैल हैं, कुछ मे हैं, और सारी जनरली सारी शैल हैं. मे कौन कौन सी हैं? 86, 87, 88 और 90. ये सारी मे हैं. एक बार चेक भी कर लो आप लोग. 86, 87, 88 एंड ऑब्वियसली 88 के साथ 88A फ्री में आता है, एंड 90. 90A वो 90A फ्री में आता है गिफ्ट में. तो ये 5 जो है ये मे है, और बाकी सारी आप देखोगे शैल. तो जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से मे हैं और कौन से शैल. तो दे कैन आस्क इफ दैट इज अ मे प्रिजम्पशन और अ शैल प्रिजम्पशन. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 79. पहला प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज. अभी हम बात करते हुए आए हैं सर्टिफाइड कॉपीज की. कहां पे बात करी थी हमने? जब हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी तो वहीं पे हमने बात करी थी दैट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी भी दी जा सकती है. इट इज अ वैलिड सेकेंडरी एविडेंस दैट कैन बी गिवन. ठीक है, 63 में भी इसका जिक्र था. 63 ने हमें बताया कि सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस में दी जा सकती है. 76 ने हमें बताया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होंगे उनकी सर्टिफाइड कॉपी अगर आप ले आओगे तो वो एक सफिशिएंट प्रूफ होगा. अब उसके साथ कनेक्ट करो 79. 79 कहता है कि वी विल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज. अब ये गवर्नमेंट के ही तो सारे बॉडीज है ना. सो कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट बॉडी है, जहां से सर्टिफाइड कॉपी लेके आओगे वो भी गवर्नमेंट बॉडी होगी. So they have just reduced the to and fro in all this court procedures. तो अगर आप कहीं से सर्टिफाइड कॉपी लेके आए हो तो वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई करी है, एंड यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन गेट इट प्रूव, उसको सर्टिफाई करवाओ, टाइम वेस्ट करो, ये सब की जरूरत नहीं है. सो दे स्ट्रेट अवे से कि जब कोई सर्टिफाइड कॉपी लेके आएगा उसको हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो वैलिडली एग्जीक्यूटेड है, वैलिड जगह से लेके आए हो, वैलिड बंदे से लेके आए हो और वैलिड डॉक्यूमेंट है. दिस इज द प्रिजम्पशन. अब इसमें क्वेश्चंस क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी चीजों को माना जाएगा सर्टिफाइड कॉपी और किन किन पे प्रिजम्पशन होगी. और फिर उसके बाद प्रोवाइजो को छोड़ के उसके नीचे जो लाइन है, लास्ट लाइन, वहां पे लिखा है जो ऑफिसर है he was holding the official character. ये भी एक प्रिजम्पशन होगी. So इसके अंदर 2 प्रिजम्पशन. Let's read it. The court shall presume to be genuine every document purporting to be a certificate, certified copy or other document. So पहले तो कोई सर्टिफिकेट हो. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लेके आते हैं, ठीक है. एनी सर्टिफिकेट
certified copy or other document, super important, which is by law declared to be admissible as evidence. ये इन तीनों के साथ रीड किया जाएगा कि ये सारी चीजें बाय लॉ एडमिसिबल होनी चाहिए. दैट इज व्हेन अ प्रिजम्पशन विल राइज, नॉट अदरवाइज. सो अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें, हमने बात करी कास्ट सर्टिफिकेट की, दैट इज अ वैलिड सर्टिफिकेट दैट अ कोर्ट कैन यू कैन ब्रिंग टू द कोर्ट एज एविडेंस. फिर हम बात करें सर्टिफाइड कॉपी की. सर्टिफाइड कॉपीज बहुत चीजों की आती हैं, जैसे हमने कल बात करी थी मैरिज सर्टिफिकेट की, जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले आए. तो इन सारी चीजों की जो आप प्रॉपर डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड कॉपीज लेके आते हो, वो सर्टिफाइड कॉपीज. एंड अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच बाय लॉ आर डिक्लेयर्ड टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट. सो बाय लॉ किसी भी चीज को अगर डिक्लेयर किया गया है कि ये एक एडमिसिबल एविडेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने एक केस पढ़ा था. देयर वाज एन ऑर्डर बाय अ चैरिटी कमिश्नर regarding whether this part of the property or this certain property can be held to be a charitable trust or charitable or not a charitable trust. तो जब वो ऑर्डर चैरिटेबल कमिश्नर करता है तो certain act tells us that उसका ऑर्डर जो है वो एडमिसिबल होगा लॉ में एज एविडेंस. तो अगर ऐसे स्पेसिफिकली लॉ ने कहा है कि ऐसी चीजें एडमिसिबल होंगी एज एविडेंस, तो फिर उनकी जेन्युइननेस प्रिज्यूम करी जाएगी सेक्शन 79. ठीक है. सो सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी एंड अदर डॉक्यूमेंट. समवन्स माइक इज अनम्यूटेड, प्लीज माइंड इट. सो declared by law as admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the central government or the state government. Second question, कि ये कौन सी गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होना चाहिए? Is it the state government or the central government? Obviously it will be the appropriate government. जहां पे भी आपको लगाना है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो वहीं से करवाओगे, एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट से करवाओगे, बट इट कैन बी बोथ द गवर्नमेंट्स. आगे की लाइन आप छोड़ दो, वो जम्मू एंड कश्मीर की बात है, वो अब खत्म हो चुका है. अब प्रोवाइजो को छोड़ के नीचे आ जाओ. दिस इज द सेकंड प्रिजम्पशन. द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम. ये भी शैल है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है. ऊपर भी शैल था, नीचे भी शैल है. The court shall also presume that the officer by whom any such document purports to be signed or certified, जिसने भी कहा है, जिससे भी साइन करा के लाए हो, जिससे भी सर्टिफाई करा के लाए हो, माना जाएगा कि he held the official character which he claims in such paper. तो अगर नीचे तहसीलदार का साइन है, उसने सर्टिफाई किया है, तो माना जाएगा कि हाँ ये इंसान उस टाइम पे तहसीलदार था, जब तक कि आप रिबर्ट ना कर दो. यू कम एंड रिबर्ट. सेक्शन 3 में क्या लिखा था कि शैल प्रिज्यूम में ऐसा नहीं है कि आप दरवाजे बंद हो जाते. कोर्ट लिखी. आफ्टर दैट इफ यू थिंक यू कैन रिबर्ट इट, यू कैन कम टू द कोर्ट विद एविडेंस एंड टेल दैट ये तहसीलदार तो सर ये रिटायर हो चुका था, इसने अपने रिटायरमेंट की डेट के बाद आके ये सर्टिफाई किया, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो यू कैन रिबर्ट इट, एंड इफ यू रिबर्ट इट, then the whatever evidence has come will go down the drain. ठीक है. So the court shall also presume that the officer was holding the official character. मैं इसी में एक केस था, ऊपर हमने एक वर्ड देखा, it should be duly certified. Duly certified बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, duly होना चाहिए. So अगर किसी पटवारी से आप किसी चीज को सर्टिफाई करा के ला रहे हो, अब उस केस में क्या हुआ, the person has got certain papers, जो वो पटवारी से प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह सर्टिफाई करा के लाया, और सर्टिफिकेशन के नाम पे लड़का क्या करके लाया है, नीचे लिखवा के ले आया है कि आई एम द पटवारी एंड दिस इज द ट्रू कॉपी, दैट्स इट. So he has not followed the seal and stamp and the proper memorandum that they have to make. They have not done that. So because they had not followed the due procedure laid down by the law, the copy was not taken to be a certified copy, not a duly certified copy. And because it was not a duly certified copy, the presumption did not arise. So they were asked to bring proof of the contents of the document. ठीक है. So this is the first presumption. अब इसका proviso देख लो. Provided that such document is substantially in form.
जिस तरीके से नॉर्मली बनता है उस फॉर्म में होना चाहिए सब्सटैंशियली। छोटे मोटे क्लरिकल एरर्स, छोटा मोटा फॉर्मेटिंग एरर्स हो सकता है कभी कभी, क्योंकि कुछ स्टेट से किस स्टेट में जाओ कुछ कुछ चेंज हो जाता है, बट सब्सटैंशियली इन फॉर्म होना चाहिए। एंड परपर्ट्स बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। जैसे लॉ में लिखा है वैसे एग्जीक्यूटेड हुआ हुआ दिखता है। दिस इज अबाउट प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस। समवन्स माइक इज स्टिल ऑन। राजेश सर, ओके ठीक है अभी, ओके लेट्स मूव ऑन। सो अब नेक्स्ट है सेक्शन 80, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। अच्छा, इसमें हमें सारे नहीं करने, कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा बिकॉज दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। जैसे कि सेक्शन 79 है, 80 है, देन वी हैव 85 एंड 86 एंड देन 88 एंड 90। तो बीच के जो बेकार सेक्शंस हैं उन पे हमें ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स कम टू 80 व्हिच टॉक्स अबाउट, अच्छा 79 में एक और एग्जांपल था, a case that I had read about, you guys can also read, जो हमने पटवारी वाली बात करी, that is भिंका versus चरण सिंह, BHINK, भिंका versus चरण सिंह। I have not written the citation here. Just request राघव जी, वो पहले आप एक बार चैट में लिख देते, इज इट पॉसिबल? लिख सकते हो? Sorry केस साइटेशन लिख सकते हो चैट में? सर, मैं आपको बाद में भेज दूंगा because I'm using mobile phone right now, तो अभी लिख नहीं पाऊंगा मैं, but I can spell it out for you. It is BHINK, भिंका versus चरण सिंह, भिंका versus चरण सिंह। BHIMKA, हाँ, भिंका वर्सेस BHINK, भिंका वर्सेस चरण सिंह। ठीक है। अच्छा, इसी पे एक और केस था जिसमें व्हाट हैपेंड वाज दैट देयर वाज अ प्रिंसिपल who had made a certificate for a certain student and had certified that this student is eligible to go forward and appear in an examination. Now ये जो certificate था, this certificate was a very casual certificate, जो जैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए वैसा सर्टिफिकेट वो था नहीं। बस कोरे कागज पे उन्होंने मस्त लिख के दे दिया कि हाँ बहुत बढ़िया बच्चा है, जाओ और करो जो करना है। सो अब उसके ऊपर केस चला कि आपने गलत तरह से सर्टिफिकेट लेके आए हो, गलत सर्टिफिकेट आपने लगाया है, आपके ऊपर 197 198 लगेगा आईपीसी का एंड यू विल गो टू जेल एंड ऑल दैट। तो वहां पे कंटेंशन ये रेज करी गई कि दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट व्हिच इज एडमिसिबल इन लॉ। सो आपका जो सेक्शन है वो स्पेसिफिकली कहता है कि सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस। तो अगर वो ऐसा एडमिसिबल और रिक्वायर्ड बाय लॉ वाला सर्टिफिकेट है देन इट विल फॉल अंडर दिस सेक्शन, नहीं तो नहीं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, अगर आप थोड़ा सा वो केस लॉ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। लेट्स कम टू सेक्शन 80। सेक्शन 80 says presumption as to documents produced as record of evidence. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे हम उन चीजों की बात कर रहे हैं, पहली बात जो रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस हैं, जो एज एविडेंस क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने 161 में कोई स्टेटमेंट्स दी हैं वो एविडेंस नहीं होती, दे आर जस्ट स्टेटमेंट्स। तो कहीं भी कोई भी ऑफिसर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, दैट डज नॉट बिकम अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। It is only a record of evidence when it is the right stage. For example, inquiry and trial में जब कोई magistrate होता है, he takes the evidence. That is what is evidence. बाकी कोई भी statement evidence नहीं होती, they are just statements. ठीक है? So अब 80 क्या बोलता है कि जब भी कोई भी ऐसा document होगा which is produced as record of evidence, तब presume हम ये कर लेंगे कि वो सही तरीके से सही फैक्ट्स हैं और सही इंसान ने उसको रिकॉर्ड किया। Let's see what it says. Whenever any document is produced before any court,
purporting to be a record or memorandum of evidence. कोई मुझे बता सकता है कहीं पे हमने क्या पढ़ा है सीआरपीसी में कि memorandum of evidence बनाया जाएगा? The judge or magistrate will make a memorandum of evidence. कहीं कहीं पे भी ध्यान आ रहा है, कहीं पे हमने पढ़ा हो ऐसा जहां पे एविडेंस दिया जा रहा हो? एक 164 में लिखा है कहीं पे 164 की स्टेटमेंट्स में 164 का क्लॉज 4 164 में क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है that the magistrate will make a memorandum or a footnote? हाँ लिखा हुआ है। राइट, सो वैसे ही मेमोरेंडम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो प्राइमरीली देखो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट एंड जजेस की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी अ ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर हु कैन टेक एविडेंस, जो एविडेंस ले सकेगा। और एविडेंस लेने वाले कौन होते हैं? जजेस। हमने आईपीसी में डेफिनेशन देखी थी जज की। एक जज क्या होता है? 19 था, सेक्शन 19 था शायद, जहां पे लिखा हुआ था ही इज अ पर्सन हु कैन वैलिडली टेक एविडेंस। कोई भी मैजिस्ट्रेट जो सिर्फ कमिटल कर रहा है, ही इज ऑल्सो नॉट अ मैजिस्ट्रेट, ही इज ऑल्सो नॉट अ ऑथराइज्ड ऑफिसर, ही इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अ जज, ही ओनली कमिट्स द केस, ठीक है। सो ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर हु कैन टेक एविडेंस, उसमें जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स आएंगे, किसी भी और ऑफिसर को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं। तो हम सिर्फ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट जो कोर्ट में बैठे हैं उनके ही रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स और उनके ही द्वारा रिकॉर्डेड एविडेंस की जेन्युइननेस पे भरोसा कर रहे हैं। हम किसी पुलिस वाले के, किसी और डिपार्टमेंट के, इधर उधर किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। सो व्हेनेवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट, आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है किसी कोर्ट के सामने, purporting to be a record or memorandum of evidence, आप कह रहे हो सर देखो इस पर एविडेंस है। वन पॉइंट है राघव जी, आपने जो बोला ना जजेस का, जरा दोबारा बताओ, इसमें डेफिनेशन से थोड़ा सा फर्क आ रहा है। आपने क्या बताया, जज में कौन कौन है? सर जज में वो आएगा जो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है। हाँ, तो आपने कुछ बोला कमिटल का भी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे दोबारा बताओ। तो एक मैजिस्ट्रेट होता है जो सिर्फ कमिटल करता है, वो एक जज नहीं माना जाता। नहीं तो लेकिन इसमें लिखा है ना सेक्शन 19 को देखो, उसमें आईपीसी में से जज, the word judge denotes not only every person who is officially designated judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, definitive judgment board. अच्छा, वो तो जजमेंट की बात कर रहा है ना सर। हाँ हाँ, ओके, the fellow who does committal वो judgment तो देगा नहीं, ठीक है। आप एक काम करो, आप सेक्शन 19 की इलस्ट्रेशन डी रीड कर दो सबके लिए। सेक्शन 19 आईपीसी की इलस्ट्रेशन डी को रीड कर दो। A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for a trial to another court is not a judge. Good. अच्छा किया आपने बता दिया। राइट सर, ठीक है। ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, एविडेंस एक्ट बहुत छोटी एक्ट है, मगर अपने आप में छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो बहुत खेल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रख दिया, आप कह रहे हो सर ये एविडेंस है, इस पे हमने एविडेंस रिकॉर्ड किया, आप ही ने इस पे एविडेंस रिकॉर्ड किया। purporting to be a record or memorandum of evidence or of any part of the evidence given by a witness. The word is witness. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 80 में किस किस की स्टेटमेंट्स पे प्रिजम्पशन करी जा रही है? विटनेसेस हैं, प्रिजनर्स हैं एंड अक्यूज्ड हैं। अभी आएगा आगे प्रिजनर एंड अक्यूज्ड। सो 3 लोग हैं इसके अंदर, बाकी और कोई नहीं है, हम और किसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो given by a witness in a judicial proceeding. When it is judicial proceeding, is investigation a judicial proceeding? Is investigation a judicial proceeding? Anybody?
If you say yes, then thumbs up. If you say no, then thumb down. So Nandini says yes, it is a judicial proceeding. Anybody else who wants to go with Nandini? Shraddha? Okay, Shraddha is with Nandini. Sulakshana ji? कर दो, अब सब एक ही टीम में है तो कर ही देते हैं, लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। नहीं, so investigation is not a judicial proceeding. So judicial proceeding की definition क्या है? Anybody knows where is it defined? Do we have any section that defines judicial proceedings? क्या CRPC के 2I में कहीं कुछ लिखा है ऐसा judicial proceeding के बारे में? मेरा माइक खराब हो गया था, I had already, मैं बोलने वाला था ये already I had located कि नहीं है, उसी में था 2I। कोई बात नहीं सर, ठीक है। So एक बार CRPC का 2I देख लेते हैं। So I'm just laying include any proceeding in the court which judicial proceeding includes any proceeding in the courts which evidence is or may be legally taken on oath। तो वो तो होता नहीं इन्वेस्टिगेशन में, तो it cannot be judicial proceeding। अब एक बात बताओ, सेक्शन 164 जो है वहां पे तो एविडेंस लिया जा रहा है, तो फिर हम उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहें या ना कहें? वहां पे जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी गई हैं उन्हें हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहें या ना कहें? इसमें है is evidence is or may be legally taken on oath, है ना, may be, जरूरी नहीं है। देखो 164 स्टेज क्या है? 164 एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन कहोगे या इंक्वायरी कहोगे या ट्रायल कहोगे? 164 की स्टेज को आप इन्वेस्टिगेशन कहोगे क्योंकि भाई अभी तक तो पुलिस वालों ने चार्जशीट नहीं दी है, या आप उसे इंक्वायरी कहोगे क्योंकि जो हमारा 2G है, 2G ऑफ CRPC, वो कहता है इंक्वायरी इज एवरीथिंग डन बाय अ मैजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल। तो यहाँ पे तो मैजिस्ट्रेट कर रहा है, क्या इसलिए हम उसे इंक्वायरी कहेंगे? या फिर हम उसे दोनों चीजें कह दें कि इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द स्टेजेस? तो इंक्वायरी है ना सर। सो 164 की सर जो स्टेज है ना, टेक्निकली कहने को तो इट्स अ कॉन्फ्लुएंस, इट इज इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज एन इंक्वायरी, बिकॉज ऑफ बोथ द रीजंस, क्योंकि अभी तक चार्जशीट नहीं आई है एंड बिकॉज मैजिस्ट्रेट कर रहा है। अब मैजिस्ट्रेट कुछ कर रहा है तो इंक्वायरी है, इट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर। और ट्रायल भी नहीं है क्योंकि अभी तक कॉग्निजेंस नहीं हुई है, तो इंक्वायरी है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट ऑल? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन सर, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन सारे प्रोविजंस को एक साथ पढ़ोगे ना, 2H को, 2I को, 2G को, GHI, तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत को क्लैरिटी आने लगेगी कि कहाँ पे इंक्वायरी, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कहाँ से इंक्वायरी, कहाँ पे ट्रायल। तो उस हिसाब से इसको कॉन्फ्लुएंस कहेंगे। बट अब बहुत सारी कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि 164 की जो स्टेटमेंट है उसे हम एविडेंस नहीं मानते, उसे हम स्टेटमेंट मानते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिसने 164 दिया है वो विटनेस बनेगा ही बनेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अभी के लिए। लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट 80 सेज। अभी के लिए 80 सेज मैजिस्ट्रेट या जज या किसी ऑफिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर के सामने आपने अगर कोई भी स्टेटमेंट दी है एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, तो हम प्रिज्यूम करेंगे, क्या प्रिज्यूम करेंगे? that the document is genuine। पहली प्रिजम्पशन, ये आप नंबर लगा लो इसके ऊपर, पहली प्रिजम्पशन है that the document is genuine। जिस भी डॉक्यूमेंट पे वो आया, 164 जो मैजिस्ट्रेट ने ली है, अगर वो ओथ पे ले रहा है तो वो एविडेंस है। ये मैंने ज्यादातर जजमेंट्स में पढ़ा है। अगर ओथ पे कोई स्टेटमेंट ली जा रही है तो हम उसे एविडेंस मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं? द डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। 164 में जो हमने स्टेटमेंट्स ली हैं वो जेन्युइन है। That any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true। अगर वहां पे लिखा हुआ है कि so and so circumstances में हमने इन कैमरा प्रोसीडिंग करी थी, जजेस लिखते हैं ना ऊपर कि it's an in camera proceeding, I have told the person making the statement that you don't have to make such confession, अगर 164 में confession हो रहा है etc।
तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम मान के चलेंगे हाँ ऐसा ही हुआ, सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही थे। अंडर विच इट वाज टेकन purporting to be made by a person signing it are true and that such evidence statement or confession was duly taken। ऊपर भी लिखा था duly taken, यहाँ पे भी लिखा है duly taken, माने जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए था वो प्रोसीजर फॉलो हुआ है। जैसा 164 में लिखा है ऐसे स्टेटमेंट्स लोगे, वीडियोग्राफी करोगे, सर्टेन सिचुएशंस में लड़कियों के लिए अलग से प्रोविजंस हैं, कैसे मेमोरेंडम बनाया जाएगा, कैसे फुटनोट, सब कुछ किया गया है। तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। अब कोई अगर सामने 164 की स्टेटमेंट्स कोर्ट के सामने रख रहा है तो कोर्ट उसे ये नहीं कहेगी या एडवर्स पार्टी पुश नहीं करेगी सर इसको प्रूव करो, हम नहीं मानते। क्या पता 164 में क्या लिखा होगा, जज साहब ने क्या लिख दिया। लॉ कह रहा है भाई हम मान के चल रहे हैं, जज साहब ने जो लिखा है वो सही लिखा है, जिस सर्कमस्टेंसेस में लिखा है सही लिखा है, जो लोगों ने उसमें लिखा है वो सच है। दिस इज द प्रिजम्पशन दैट 80 गिव्स अस। ठीक है, साइनिंग इट का मतलब क्या है यहाँ पे? मेड बाय पर्सन साइनिंग इट, मतलब जैसे 164 में मजिस्ट्रेट साइनिंग? नहीं जी नहीं, जिसने स्टेटमेंट करी है सर, साइनिंग तो दोनों की होगी वहां पे। विटनेस जो दे रहा होता है स्टेटमेंट वो भी करता है साइन, और मैजिस्ट्रेट भी करता है। 164 की स्टेटमेंट्स और 161 में ये फर्क होता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरपीसी का। 161 की स्टेटमेंट साइन होती है या 164 की स्टेटमेंट साइन होती है या एफआईआर साइन होती है? आपको पूछ लेगा इन तीनों में से 1 and 2, 1 and 3, 3 and 1, whatever। तो आपको बताना है कि भाई एफआईआर और 164 होती है साइन, 161 साइन नहीं होती। उसके ऊपर तो एक्सप्रेसली 162 बोलता है साइन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो 80 सबको समझ आ गया? इज देयर एनी कंफ्यूजन? क्योंकि कंफ्यूजन होनी चाहिए यहाँ पे, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे होनी चाहिए। नहीं, चलो अच्छा, इसके ऊपर एक केस था, इसके ऊपर एक अच्छा केस था दैट आई हैड read about, or I don't know if I had witnessed in the court, but उसमें क्या था कि there was a dying declaration that a person had made, और वो dying declaration देते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बंदा रहा होगा उस टाइम पे, वहां पे एक सोशल वर्कर भी था, एक मेडिकल ऑफिसर भी था और एक मैजिस्ट्रेट भी था। इन तीनों ने इसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करी। डाइंग डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हो गया, और केस लॉज क्या कहते हैं भाई, डाइंग डिक्लेरेशन पर तो आप अकेली डाइंग डिक्लेरेशन पे भी कन्विक्ट कर सकते हो किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। नाउ डाइंग डिक्लेरेशन बीइंग रिकॉर्डेड बाय द मेडिकल ऑफिसर एंड रिकॉर्डेड बाय द सोशल वर्कर, ये दो की तो वो डाइंग डिक्लेरेशन जो इन्होंने रिकॉर्ड करी वो लेके आ गए, मैजिस्ट्रेट वाली नहीं लेके आए। तो क्या इन डाइंग डिक्लेरेशंस पे सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन लगेगी कि ये सही तरह से किए गए थे, सही जिसने भी किया है उसी ने किया है, जिन सर्कमस्टेंसेस में किया है वही सर्कमस्टेंसेस में हुआ है? क्या वो प्रिजम्पशन इस पे लगेगी या नहीं लगेगी सेक्शन 80 के हिसाब से? ओके, श्रद्धा इज सेइंग नहीं लगेगी, तो everybody who's with श्रद्धा can go with नहीं लगेगी। Anybody else? I can't see many people on video. I request everybody to stay on video, please. So, कृष्णा जी का क्या आंसर है, लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। राजेश सर कहते हैं लगेगी, श्रद्धा कहती है नहीं लगेगी, है ना? श्रद्धा कहती है नहीं लगेगी। सुलक्षणा जी नहीं लगेगी। सुलक्षणा जी और श्रद्धा की दोस्ती है, साथ ही चलते हैं। सो नंदिनी लगेगी नहीं लगेगी? प्रिजम्पशन लगेगी, सब दोस्त हैं एक दूसरे के। टंडन सर है प्रैक्टिकल आदमी, नहीं लगेगी। तो जब वहां पे बोला है कि जज और मैजिस्ट्रेट या पब्लिक ऑफिसर का साइन होना चाहिए जो ऑथराइज्ड है उस एविडेंस को लेने के लिए, तभी ये प्रिजम्पशन लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। क्या एक मेडिकल ऑफिसर, एक जज या मैजिस्ट्रेट या ऑफिशियल ऑफिसर है टू टेक द डाइंग डिक्लेरेशन, टू रिकॉर्ड अ डाइंग डिक्लेरेशन? नहीं है, तो फिर ये प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। भले ही उन्होंने जब रिकॉर्ड किया है वो अच्छा एविडेंस है, बढ़िया एविडेंस है, बढ़िया लिख के लाए हो, वो लगाओ और उस पर यूज करो, बट उस पर प्रिजम्पशन नहीं लगेगी, उसे प्रूव करना पड़ सकता है।
डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोविजन आपको क्या कहता है? 32 क्या कहता है? कहता है भाई डाइंग, अगर कोई मरता हुआ बंदा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ था या नहीं था, मगर अपने मरने के बारे में कोई स्टेटमेंट दे के चला गया और आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है, आप उसके एडमिशन को या जो भी उसने डिक्लेरेशन दी है उसको यूज कर सकते हो एविडेंस। इतना ही कहता है ना, ये तो नहीं कहता कि उसको सच माना जाएगा, ये नहीं कहता कि उसको सच माना जाएगा, बस ये कहता है यूज कर सकते हो, यूज करके कन्विक्ट भी कर सकते हो, ये जजमेंट में कह दिया आपको। 80 यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या एक डाइंग डिक्लेरेशन को हम जेन्युइन मान लें, शैल प्रिज्यूम कर दें कि जब तक कोई और रिबट नहीं करता तब तक इसको सच मान लिया जाए। सेक्शन 80 ये पूछता है, और जब वो पूछता है तो वो एक कंडीशन लगाता है कि भाई पब्लिक ऑफिसर के थ्रू होना चाहिए, जज या मैजिस्ट्रेट के थ्रू होना चाहिए, राइट। तो अगर मेडिकल ऑफिसर और सोशल वर्कर पब्लिक ऑफिसर मैजिस्ट्रेट जज नहीं है तो फिर उस केस में 80 की प्रिजम्पशन नहीं लगेगी। नहीं तो इसमें एक बार आप 37 खोल, सॉरी 32 खोल के मुझे बता दो कहाँ लिखा, मेरे को मे बी आई एम मिसिंग आउट। 32 में क्या क्या बता दूं सर, क्या लिखा है? स्पेसिफाइड ऑफिसर के ही थ्रू होगा तभी तो प्रिज्यूम होगा ना। 32 में नहीं, 80 में लिखा है। 32 तो हमें बस ये बताता है कि अगर कोई आदमी मर गया है जिसने अपने डेथ के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको यूज कर सकते हो, वो एक वैलिड एडमिशन है, बस इतना बताता है। 80 में प्रिजम्पशन है, सेक्शन 80 के अंदर प्रिजम्पशन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ना बिफोर purporting to be signed by any judge or magistrate, मैं समझ में नहीं आया मेरे को, I have not understood. सर सेक्शन 80 जो है वो कहता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट जो एक रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस बनने जा रही है वो अगर एक पब्लिक ऑफिसर ने रिकॉर्ड करी है तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो सही तरह से रिकॉर्ड हुई है, सही रिकॉर्ड हुई। दैट्स इट। अब मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर एक सोशल वर्कर ने एक डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है तो क्या हम उसे सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन का बेनिफिट दे दें? तो मैंने आपको बताया कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सेक्शन 80 चाहता है कि एक पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए जो रिकॉर्ड करता है। अब मैंने उसके बाद बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन का प्रोविजन है कहां पे? 32 में, और वहां पे कोई भी पब्लिक ऑफिसर प्रिजम्पशन इस चीजों की बात नहीं होती। वहां तो सिर्फ एक जनरल प्रोविजन है कि कोई आदमी जो आज की डेट में मिसिंग है और अपनी डेथ के बारे में कोई बात कर गया है तो वो एक वैलिड स्टेटमेंट होगी, वो आप यूज कर सकते हो, है ना। वहां कोई प्रिजम्पशन नहीं है। मैं यहाँ पे 80 के पैमानों पे नाप रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट, जैसे निर्भया का केस था, इन दैट केस शी वाज सो severely injured that she was almost in a vegetative state. Now the magistrate had to go to the hospital and take 164 statements. That statement will get the benefit of section 80. उसको जेन्युइन माना जाएगा। अगर उनकी जगह कोई सोशल वर्कर आके निर्भया केस में जो थी लड़की, उनका स्टेटमेंट ले लेता, क्या उस डिक्लेरेशन को हम 80 का प्रिजम्पशन दे देते? नहीं देते। भले ही वो एक अच्छा एविडेंस होता, हम इस पे कोई शक नहीं है कि वो एक अच्छा एविडेंस होता, डाइंग डिक्लेरेशन अच्छा एविडेंस है, प्रूव करो आगे, 32 में उसे यूज करो, मगर प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी। शैल प्रिज्यूम, ये एक स्टेज आप स्किप नहीं कर पाओगे। क्या प्रूव करोगे जब वो डाइंग डिक्लेरेशन है, सोशल वर्कर बोल रहा है, अभी आप क्या प्रूव करोगे? सर डाइंग ऐसे तो हो सकता है ना, डाइंग डिक्लेरेशन कोई अपने आप से लिख के आ गया, उसने दी है या नहीं दी है, ये सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली, दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन the mere fact that statement given by a person dying, वो तो हम कॉग्निजेंस लेते हैं उसका सेक्शन 32 में ना। हाँ वो ना सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो लेकिन उसको अब वो प्रूफ क्या करना है? नहीं, उसको एविडेंस में लिया जा सकता है सर, मगर कई बार होता है लोग झूठी डाइंग डिक्लेरेशन बनाते हैं ना। बंदा मर चुका है, लिखा के ले आए, बंदा जो मरा हुआ है उसका अंगूठा लगा दिया उसके ऊपर, बोल दिया इसने दी थी डाइंग डिक्लेरेशन। अब ये चीज को प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। अगली पार्टी तो बोलेगी कि उसने नहीं दी, वो तो इस टाइम पे मर गया था, उसने दिए या नहीं दी इस चीज को प्रूफ करो। ये चीजें तो प्रूफ करनी पड़ती हैं। डाइंग डिक्लेरेशन कोई कंक्लूसिव प्रूफ थोड़ी है किसी का, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। लेकिन उसमें जरूरी थोड़ा ना कि आप हमेशा उसका सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ही लगा लो। इट कैन बी वर्बल आल्सो। मतलब मैं तो एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है।
मैं एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि कोई टाइम डिक्टेशन लेके आता है तो इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, नाइदर डज इट गिव राइज टू एनी प्रिजम्पशन, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, ऑल्दो इट्स अ गुड एविडेंस, अच्छा एविडेंस है, मगर वो प्रिजम्पशन नहीं है। सेक्शन 80 का जो प्रिजम्पशन है ना वो और ज्यादा स्ट्रेंथ दे देता है, आपको एक स्टेज स्किप करवा देता है कि चलो कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर ही लिया, अब अगली पार्टी के ऊपर चला गया बर्डन ऑफ प्रूफ। वो चीज आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, तो 80 में तभी मिलेगी जब वो एक पब्लिक ऑफिसर के थ्रू किया गया, ठीक है। सो दिस एग्जांपल वाज टू मेक इट क्लियर, ठीक है। सो आई एम लेइंग एम्फेसिस ऑन दीस फ्यू सेक्शंस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम फटाफट चले जाएंगे। सो एनीबॉडी वाज थिंकिंग कि क्विक रिवीजन के नाम पे इतनी बातें यू कर रहा है, ठीक है। सो नहीं, गुड थिंग यू टेलिंग अस, इट्स अ लाइफ टाइम एजुकेशन। राइट, लेट्स गो अहेड नाउ। अच्छा, ऊपर जो मैंने मेमोरेंडम की बात करी थी, मेमोरेंडम हमें और कहीं भी देखने को मिलता है क्या? 164 को 164 को सॉरी, आई वाज रिसीविंग अ कॉल। हाँ, 164 को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? 164 की स्टेटमेंट्स वगैरह को लीड कौन से सेक्शन में किया जाता है? माने कहीं पे ऐसा मेमोरेंडम का और कोई जिक्र भी है क्या? मैजिस्ट्रेट को कहीं पे डायरेक्शन दी हुई है कि 164 कैसे लिखा जाएगा? सीआरपीसी के अंदर ही बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसी मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। So there is a section called 281, recording of examination of accused. It tells us whenever an accused is examined by a metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination. तो जो मेमोरेंडम की बात ऊपर सेक्शन में हो रही थी, कुछ उसका एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। लेट्स गो अहेड। नाउ वी हैव सेक्शन 81. 81 कहते हैं प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट्स, पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कुछ नहीं है, बिल्कुल ही बेकार सेक्शन है। प्राइवेट एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, अगर जो एक्ट्स बनाए गए हैं, जो गैजेट्स हैं, जो गैजेट्स निकालती है गवर्नमेंट, और बाकी इनके पार्लियामेंट के जो प्राइवेट एक्ट्स वगैरह और बाकी जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशंस वगैरह निकालते हैं, उनकी प्रिजम्पशन करी जाएगी। याद रखने वाली चीज या इसमें नोट करने वाली चीज सिर्फ एक है कि भली ये जो प्रिजम्पशन हो रही है वो किस चीज की हो रही है, ठीक है। तो इट विल presume the genuineness of every document purporting to be so and so and so document, purporting to be a document directed by law to be kept by any person if it is in substantial form and required by law. Not very important, nothing, I have never seen it in any paper. Okay, नोटरी भी इसमें आएगा, नोटराइज, sorry नोटराइज्ड होना डॉक्यूमेंट उसका। सर आवाज नहीं आ रही है, is anybody speaking? गोपाल सर आप कुछ कह रहे हो? यस सर, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है सर? आपकी सर आवाज नहीं आ रही है, I cannot hear you. इधर आ रही है गोपाल साहब, बड़ी क्लियर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? आप करो। हाँ, मेरे को तो बड़ा क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ सब नोटराइजेशन होना है, वो भी इसी के सेक्शन में आता है कि उसका प्रिजम्पशन भी यही दिया जाता है क्या? नोटराइजेशन का प्रिजम्पशन, ये क्या कि नोटराइजेशन, इसलिए तो नोटराइजेशन में लॉ की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। नोटराइजेशन हुई है तो जेन्युइन है इस चीज का। हाँ, I don't think notarization will be covered here. क्वेश्चन मेरा भी एक डाउट है इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं सर, I don't think notarization is covered here, but I'll check it out. जस्ट मेरे माइंड में आया तो इसलिए पूछ रहा था, किसी को पता हो। नहीं, अच्छी चीज है, तो एक बार चेक कर लेंगे if there is notarization के बारे में, क्योंकि नोटरी के बारे में तो मैंने सिर्फ 85 में पढ़ा है आई थिंक वहां पे। तो चलो लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं। नोटराइजेशन के बारे में मैंने इसमें कुछ नहीं पढ़ा। सो लेट्स गो अहेड। नाउ 81 के साथ साथ 81A सेम चीज बोलता है, गैजेट्स अगर ई गैजेट्स हैं तो उनकी प्रिजम्पशन मान ली जाएगी। 82 आज की डेट में ऑब्सलीट है। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल इन एविडेंस विदाउट प्रूफ, सॉरी इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ, डज नॉट मैटर टू अस।
we don't have anything to do with it. Then comes 83, presumption as to maps and plans made by the authority. Again, not very important. कहता बस इतनी चीज है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स वगैरह बनाए हैं तो वो सब एक्यूरेट बनाए गए हैं और गवर्नमेंट ने सही तरह से बनाए. That's it, nothing else. याद रखने वाली बस ये चीज है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं 83 और 87 में, क्योंकि 87 कहता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स. बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स 87 में है, तीन चीजें, और 83 में है मैप्स और प्लान्स. इसमें हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. जब पेपर में आता है ना तो कभी कभी 87 को 83 लगा देते हैं और 83 को 87 लगा देते हैं. तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही भेजा जाता है. इसी तरह से हमने एक मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स वाला सेक्शन एडमिशंस में भी देखा था, रेलेवेंसी के प्रोविजंस में भी देखा था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर मैप्स और प्लान्स के अंदर लिखी गई है जो गवर्नमेंट ने जारी करे हैं तो वो एडमिशन रेलेवेंट माने जाएंगे, वो रेलेवेंट स्टेटमेंट्स मानी जाएंगी. क्या ऐसा किसी को याद आता है कौन से सेक्शन में देखा था? हिंट दे देता हूँ, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वाले सेक्शंस में, 34 से 38 के बीच में. थर्टी 34 से लेके 38 के बीच में. सेक्शन 36 तो नहीं? 36. So 36 को आप लोग 83 और 86 दोनों के साथ लिख लेना. So whenever you are reading this you should know. बट हाँ, इसको बाइफरकेट करके रखना. 83 एंड 87 जो है वो जेन्युइननेस की बात करते हैं. जो उसके अंदर लिखा है वो जेन्युइन है, एक्यूरेट है, सही. और 36 जब बात करता है वो सिर्फ ये बात करता है कि जो उनके अंदर लिखा है वो रेलेवेंट है. यहाँ पे वो जेन्युइन है, वहां पे वो रेलेवेंट है, क्योंकि वो चैप्टर रेलेवेंसी का था. यहाँ पे ये चैप्टर प्रूफ का है. प्रूफ के अंदर हमें प्रिजम्पशंस दी जा रही है, प्रिजम्पशंस हमें जेन्युइननेस की दी जा रही है. तो ये जेन्युइननेस के प्रोविजंस हैं 83 एंड 87. ठीक है. Let's go to 84. 84 talks about presumption as to collection of law and reports of decisions. So यहाँ पे क्या कहता है? Court shall presume genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government. यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि certain firm so and so name ABC अपनी कलेक्शन छापती है. फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर लॉयर्स क्लब इंडिया हम जो जजमेंट समरीज बनाते हैं अपनी साइट पे डालते हैं, उनको उठा के अपनी एक कलेक्शन बनानी शुरू कर दें और एक मैगजीन निकालनी शुरू कर दें, तो क्या हमें प्रिजम्पशन मिलेगी 84 में? नहीं मिलेगी, बिकॉज this is not being done under the authority of the government. So this is the important point to note. उसको आप मार्क करके रख लें. ठीक है. So what will we presume? We'll presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of government of any country. Important, of any country है ये. It's not only about India. सिर्फ AIR की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about any country. And to contain any of the laws of that country and of every book purporting to contain reports of decisions of that country. So we are talking about Ware Acts also, and we are talking about journals as well. So ये तीन चीजें हमको याद रखनी है. Presumption किस चीज की हो रही है? गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए, किसी भी कंट्री का हो सकता है, Ware Acts भी हो सकते हैं और journals भी हो सकते हैं. अब 84 को हम कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं 86 के साथ. सर एनसीईआरटी की बुक्स भी तो यही आएगी ना? एनसीईआरटी में सर जजमेंट्स वगैरह तो नहीं आती ना. नहीं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में है ना, कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस. एनसीईआरटी निकालती है सर ऐसा कोई जर्नल? अगर निकालती है तो बुक्स निकलती है, तो उसको भी तो कोई अगर प्रूव करना हो तो लेके आते हैं ना कोर्ट में कि ये. हाँ, अगर वो लॉज के ऊपर है, अगर वो लॉज वगैरह के ऊपर है तो आ जाएगा. एनसीईआरटी मैंने तो सुना है सिर्फ 10th 12th की बुक्स निकालती है, जीके वगैरह. कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी के या कोई कॉलेज की जो पब्लिकेशंस है वो भी लेके, तो ये पब्लिकेशंस किस में आएगा? गवर्नमेंट के पब्लिकेशन जो है, जैसे यूनिवर्सिटी की कोई चीज लेके आके कोर्ट में बताना पड़ता है. वो सर वो उसमें वो आपकी उस 87 में आएगी सर, बुक्स मैप्स एंड प्लान्स में ना, बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स में, उसमें आएगी. वो बुक्स मैप्स एंड चार्ट्स में आ जाएगा. ओके. तो जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट मैटर वगैरह में, वो सब 87 में आएगा. यहाँ पे हम लॉ की बात कर रहे हैं तो हम लॉ पे ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है. ओके सर.
अच्छा इसी तरह से अब अच्छा हमने 83 और 87 को ज्वाइन किया, कनेक्ट किया, और हमने 84 और 86 को कनेक्ट किया। इन दोनों में आप डिफरेंस नोट करके रखना, बिकॉज ये भी कंफ्यूज कर देता है। सो 84 में है कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस, एंड 86 में है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स। बाहर की कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज, वहां पे उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जर्नल्स, बुक्स वगैरह, बेयर एक्ट्स एंड ऑल दैट, उनके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जेन्युइननेस। सो कोई भी अगर कोर्ट के अंदर ये लेके आता है कि सर देखो इंग्लैंड में तो ये लॉ चलता है, हमारा डिवोर्स उस हिसाब से हुआ था, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि पहले प्रूव करो कि वहां पे यही लॉ चलता है। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। जेन्युइननेस मानी जाएगी, ये एक्यूरेट ही है। जज ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो गलत है, बट अगला बंदा आगे रिवर्ट कर सकता है कि सर देखो ये जानबूझ के गलत पब्लिकेशन से लेके आए हैं, ये पब्लिकेशन ज्यादातर गलतियां करता रहता है, और ये किसी सर्टेन ईयर के जो एडिट जो इनका संस्करण था उसमें गलती थी, ऐसा लाके आप बट प्रिजम्पशन आपको दी जाएगी। सर मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था कि ये जब हाई कोर्ट वगैरह के अंदर रिट लगती है ना, तो रिट के अंदर कोई क्वेश्चन गलत हो गया आरजेएस के अंदर या पीसीजे में, तो जब गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो वो उसकी एक्यूरेसी के लिए कॉलेज की बुक्स और जो पब्लिकेशन गवर्नमेंट की अथॉरिटी की पब्लिकेशन की है वो मंगवाती है कोर्ट। क्या आप ये लेके आओ कि किसमें लिखा है कि ये क्वेश्चन ऐसा होना है, जहां पर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन कहीं डिस्प्यूट में हो जाते हैं, तब उसकी प्रिजम्पशन के लिए वो लेके मंगवाते हैं वो। तो यही मैं पूछ रहा, इसकी वजह से पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, करेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक। तो तब वो आ जाएगा, बुक्स वगैरह वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स गो अहेड, नाउ कम्स 85। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर्स में आता भी है, ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी। सो the court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court judge or magistrate, Indian council or vice council, representative of the central government, was so executed. So यहाँ पे let me just put my phone on DND. So यहाँ पे वैसे हमारा 85 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी आ रही है उसको प्रिज्यूम सिर्फ तभी करा जाएगा जब वो कहां से ऑथेंटिकेट हुई है, किसी नोटरी पब्लिक से, कोर्ट से, जज से, मैजिस्ट्रेट से, या जो एम्बेसी में काउंसिल्स वगैरह होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव है उससे। जब तक इन लोगों ने नहीं कराया उसे ऑथेंटिकेट, तब तक कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि आप पावर अटॉर्नी लेके आ गए तो उसे जेन्युइन मान लेंगे। सो हम एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एक प्रिजम्पशन दे रहे हैं, ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, ताकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए लोगों को इधर उधर फिरना ना पड़े, ठीक है। लेट्स गो अहेड। 85 ए बी सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ज्यादातर देखा जाता है। सो प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड purporting to be an agreement containing electronic signature of the party was so concluded by affixing the electronic signature of the parties. किसी भी अग्रीमेंट के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किया है अपना, वो अगर कोर्ट के सामने लाया गया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगा कि जैसे इसके ऊपर अफिक्स करा गया है सिग्नेचर, वैसे अफिक्स करके इस अग्रीमेंट को कंक्लूड किया गया था। ये प्रिजम्पशन बना ली जाएगी, ठीक है। Then comes 85B. 85B talks about presumption as to electronic records and electronic signatures. ऊपर बात करी हमने सिर्फ अग्रीमेंट्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर्स। In any proceeding involving a secure electronic signature, the court shall presume, unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates. इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ जाता है, कई बार लोग इसको गलत करेंगे क्योंकि ऊपर लिखा है एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, अंदर इन्होंने लिखा है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
तो जब तक वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं है तब तक आपको प्रिजम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल सिग्नेचर तो कोई भी कर सकता है, उठा के स्टाइलस उठाएगा, एक पैड लेगा और उस पर बना के उसको क्रॉप करके चिपका देगा, मगर उससे प्रिजम्पशन नहीं बनेगी। प्रिजम्पशन बनेगी सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ। ठीक है, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमने पीछे भी देखा था एक जगह पे, किसी को अगर याद हो तो, जहां पे हमने बाइफरकेशन देखी थी, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ज्यादा वेटेज दी जा रही थी। कोई ऐसा कुछ सेक्शन देखा था क्या हमने? ए देखा था हमने, 67A। 67A शुरू कहां से होता है ये देखो आप। हाउ डज इट स्टार्ट? कैन एनीबॉडी रीड? श्रद्धा, कैन यू रीड इट? Except in the case of a secure digital signature, if the digital signature of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record, the fact that such digital signature is the digital signature of the subscriber must be proved. क्या सबकी वेयर में डिजिटल सिग्नेचर है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिखाई दे रहा है? मेरे वाले में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नीचे लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड बाय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, तो अब ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया होगा। So basically जब यहाँ पे भी एक्सेप्शन बनाया गया था, तो what it started with was except in the case of secured electronic signature। जब वो secured electronic signature है उसको हटा के, if the electronic signature of a subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record, the fact that such electronic signature is the electronic signature must be proved। So general rule क्या था कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसी सब्सक्राइबर का सिग्नेचर है। एक्सेप्शन क्या है? जब वो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एक ज्यादा वेटेज दी जाती है, बिकॉज़ इट इज सिक्योर्ड। थोड़ा दोबारा रिपीट सिक्योर्ड इन करो। द बारकोड। राघव जी समझ में नहीं आया, थोड़ा दोबारा। सॉरी, ये जो आपने अभी बताया ना सर, अभी हमने 85B में एक प्रिजम्पशन पढ़ी, ठीक है? 85B में प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, करेक्ट? अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की प्रिजम्पशन क्या है? इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह रहे हैं, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो I was just distinguished between a normal electronic record and electronic signature with a secured electronic record and secured electronic signature। तो जब secured की बात होती है तो वहां पे हमें obviously ज्यादा वेटेज दी जाती है। उसी तरह से 67A जो है, 67A जहां पे हैंड राइटिंग प्रूव करनी होती है, वो कहता है कि जब एक सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा वहां पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको प्रूव करने की जरूरत है। तो इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेप्शन, इट सेज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, if the electronic signature of the subscriber is alleged to have been affixed on an electronic record। अगर आप कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे किसी बंदे का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा है, then it has to be proved, it must be proved। लिखा है लास्ट वर्ड, जो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट वर्ड कहता है must be proved। तो नॉर्मली यू हैव टू प्रूव कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी का था जिसका वो एलेज किया जाता है कि था, एक्सेप्ट जब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सॉरी, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ज्यादा वेटेज दी जाती है। और प्रिजम्पशन जो दी जा रही है वो भी यहाँ पे सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दी जा रही है 85B में, नॉर्मल को नहीं दी जा रही। लेकिन एक चीज बताना, ये जो नीचे लिखा हुआ इसको क्या, आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्या पढ़े इसको? जो 67A में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसमें लिखा है सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट 10 ऑफ 2009 सेक्शन 52D फॉर डिजिटल सिग्नेचर। 52 का D तो है ही नहीं इसमें, पता नहीं क्या सर, वो 52D IT एक्ट में होगा ना, यहाँ नहीं। हाँ,
तो ये would it be termed as digital signature or electronic signature? अब हमें अब वो देखना पड़ेगा कि मेरा एडिशन पुराना है या किसका पुराना है। वैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया होगा, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जगह इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया होगा। पता नहीं, मैंने तो बात सही है ना सर? सर अगर डिजिटल, मेरा पुराना एडिशन है, मेरा 2008 का है, बहुत पुराना है। हाँ तो मेरा उससे तो हाँ। बात नहीं है, मेरा 2019 का है। सो विल रीड इट एज सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। हाँ हाँ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, क्योंकि मेरा भी जो है 2019 का है। हाँ तो शायद उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल होते होंगे, उस टाइम पे सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता होगा। अब आ गया होगा तो नहीं, इन्होंने उस समय वर्ड डिजिटल होता होगा, अभी इलेक्ट्रॉनिक लिख रहा है ना आपके में और मेरे में। मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो थी वहां पे सिर्फ हाँ। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल होता होगा, बाद में सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया होगा तो उन्होंने सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक कर दिया होगा। तो जैसे श्रद्धा जी बोल रही है वो डिजिटल, तो मे बी ओल्डर वर्जन होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक होगा मेरे ख्याल से। हाँ सो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी है कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं और सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक, महज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से ज्यादा मान्यता दी जाएगी, इसीलिए उसकी प्रिजम्पशन बनाई गई। सर ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है 2009 में एड किया। हाँ तो ये 2009 में ही आया होगा। चलो सो इसके आगे बढ़ते हैं सर। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहता है इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड that the secured electronic signature is affixed by the subscriber with the intention of signing or approving the electronic record। यहाँ पे भी सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात हो रही है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिर्फ महज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को हम कोई प्रिजम्पशन नहीं दे रहे, हम सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को प्रिजम्पशन दे रहे हैं। Except in the cases of a secured electronic signature, electronic record or secured electronic signature, nothing in this section shall create any presumption relating to authenticity and integrity of electronic record। देखो सेम बात आ गई ना, 85B के सबसेक्शन 2 के बी में क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इनको छोड़ के nothing in this section shall create any presumption relating to authenticity or integrity of the electronic record or electronic signature। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को कोई प्रिजम्पशन नहीं दे रहे, हम सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को प्रिजम्पशन दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो ये याद रखने वाली चीज है, ये पेपर में आती है। वो ज्यादातर बच्चे उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा के आएंगे क्योंकि टाइटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लिखा है, वहां पे सिक्योर के बारे में कुछ नहीं लिखा। ज्यादातर लोग इसको गलत करके आएंगे। सो देयर इज वन पॉइंट वेयर यू कैन गेट वन राइट फॉर योरसेल्फ अगेंस्ट एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, लेट्स गो अहेड। 85C में प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है आईटी एक्ट में, उसको हम मानेंगे भाई सही तरीके से दिया था, सही उसमें कंटेंट है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। ठीक है, बस आप इसका क्रम याद रखना। हमने ए में इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट देखे, ए से अग्रीमेंट 85A, ए से अग्रीमेंट। बी में हमने सिग्नेचर देखे और सी में हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट देखे। सी से सर्टिफिकेट, ए से अग्रीमेंट, और बीच में जो बचा वो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 85 ABC। ठीक है, नाउ 86 हमने देख लिया, 87 हमने पहले से ही देख लिया। बस याद रखने वाली बात क्या है कि 86 जो है वो मे प्रिज्यूम है, 87 भी मे प्रिज्यूम है, 88 भी मे प्रिज्यूम है, 88A भी मे प्रिज्यूम है। इससे पहले सारे शैल चल रहे। सो लेट्स कीप दैट बाइफर्केशन वेरी क्लियर इन द हेड। 86 से मे शुरू होता है, उससे पहले सारे शैल हैं। सो जब हम सर्टिफाइड कॉपीज फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की लेके आते हैं, उसमें मे प्रिज्यूम है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करें चाहे तो ना करें। और उसी तरह से जिससे हमने इसको कनेक्ट किया था 84 से, जब हम प्रिजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन की बात करते हैं, जो किसी भी कंट्री कलेक्शन ऑफ लॉज या रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन है उसकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर,
वो गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए हम उसे शैल प्रिजम्पशन दे रहे हैं, ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। और 86 में हम सर्टिफाइड कॉपी लेके आते हैं, हम तो कुछ भी गपला कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये बाइफर्केशन हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। देन लेट्स कम टू 88। नाउ 88 टेलीग्राफ को तो आप छोड़ ही दो, टेलीग्राफ तो पहले हुआ करते थे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मटेरियल सेम है। हमें 88A की बात करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे आता है। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। मैंने टंडन सर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और मैंने उसमें कुछ गलत सलत चीजें लिख दी, या मैंने कोई भी लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर लिया, या मैंने कोई भी कुछ भी लिखा है, फॉर दैट मैटर कुछ भी लिखा है, तो प्रिजम्पशन क्या होगी? प्रिजम्पशन ये नहीं होगी कि मैंने वो मैसेज भेजा, प्रिजम्पशन सिर्फ इतनी है कि जो टंडन सर तक पहुंचा, मैंने मेरे डिवाइस से वो ही गया था। अब वो मैंने भेजा या मेरे दोस्त ने भेजा या मेरे दुश्मन ने भेजा या मेरे भाई ने भेजा, भतीजे ने भेजा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो प्रूव करो। प्रिजम्पशन सिर्फ इतनी होगी कि जो पहुंचा है वो ही डाला गया, दैट्स इट। सो द कोर्ट में प्रिज्यूम, एंड ये मे है, शैल नहीं है। एग्जैक्टली सीरीज 80 की सीरीज में उसमें भी है, आईटी एक्ट में। क्या है सर? आई थिंक ऐसा ही कुछ है कि अगर कोई डिवाइस से मैंने मैसेज भेजा, प्रिजम्पशन है कि मेरी डिवाइस से, पर मैंने भेजा है ये गारंटी नहीं है। इट इज नॉट, इट विल नॉट बी प्रिज्यूम। वो प्रिजम्पशन, हाँ वो प्रिजम्पशन हो सकती है आईटी एक्ट में भी हो, मेरे हिसाब से आईटी एक्ट यहीं से डिराइव मैंने अरविंद सर की क्लास में पढ़ के बताया था, याद हो तो? कुछ बताया था मैंने अरविंद सर की क्लास में। Sorry, I cannot hear you guys. Just a second. मेरे से किसी की कॉल आ गई थी. I could not hear. टंडन सर आप कुछ कह रहे थे? मेरे को जहां तक याद है, मैंने वो सेक्शन कोट करके बताया था शायद आईटी एक्ट का, अरविंद सर की क्लास में। अच्छा, मेरे को जहां तक याद है, मेरे ख्याल हमने 88A की ही बात करी थी, एविडेंस एक्ट की ही बात कर रहे थे, मेरे को याद है वो दिन. So I think it was 88. So anyways, let's go to 88A. Now first of all, it's a may presume thing. Now यहाँ पे कई लोग सोचेंगे, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन देख के ही आएगा कि प्रिज्यूम कर रहे हैं कि यार एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेम मैसेज गया है तो शायद शैल ही होगा, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, व्हाट्सएप, ये वो, तो शैल होगा. शैल नहीं है, मे है, ये ध्यान रखना है. So what it says is the court may presume that an electronic message forwarded by originator, जिनसे जिस डिवाइस से पहली बार आया, originator से, through an electronic mail server to the addressee to whom the message purports to be addressed, corresponds with the message as fed into his computer for transmission. जो आप तक पहुंचा वो वही था जो मैंने अपने कंप्यूटर में फीड किया. That is the presumption, nothing else. But the court shall not make any presumption as to the person by whom it was sent. Person के बारे में कोई presumption नहीं है, वो सारी चीजें आप प्रूव करो. हम आपको बस इतनी presumption दे सकते हैं कि सर जो हमने डाला था वो पहुंच गया. Okay, let's go ahead. Now comes 89. ये भी एक अच्छा प्रोविजन है, कंफ्यूजिंग प्रोविजन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन होंगे. सो 89 says presumption as to due execution etc of documents not produced. जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटिस दिया गया प्रोड्यूस करने के लिए और आपने फिर भी प्रोड्यूस नहीं किया, अब वो डॉक्यूमेंट जो मैं लेके आ जाऊंगा, मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस लेके आऊंगा, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो ओरिजिनल था वो ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ था. लेट्स रीड इट. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम. नाउ अगेन वी हैव शैल हियर. हमने बात करी थी 86, 87, 88, 88A एंड 90.
89 बीच में एक बिचौलिया है जो शैल है, ठीक है। So the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce हम कहाँ देते हैं 66 notice to produce under section 66. The court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed. तीन चीजें, and लगा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है, तीन चीजें हैं, नोट करके रखनी है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्या क्या चीजों की प्रिजम्पशन होगी इसमें, दैट इट वाज अटेस्टेड, अटेस्ट कौन करता है, विटनेसेस, स्टैम्प्ड बाय व्हाटएवर अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु मेड द डॉक्यूमेंट। ये तीनों चीजें हुई थी इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसा कि लॉ चाहता है वैसी रिक्वायरमेंट थी। अब इसका मतलब क्या हुआ और इसका इंपोर्ट क्या हुआ? इसका इंपोर्ट ये हुआ कि अब कोई बंदा है जो एक डॉक्यूमेंट अपने पोजेशन में लेके बैठा है और वो डॉक्यूमेंट अब ला नहीं रहा है कोर्ट में, तो हमें 66 का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। अब हम 66 का नोटिस देते हैं, वो कहता है कि जी मैं तो नहीं ला रहा, मना कर देता। अब हमारे पास राइट आ जाता है कि हम सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। ये हमने 65-63 में पढ़ लिया था कि आपको जब भी सेकेंडरी एविडेंस लाना है तो आप एक नोटिस दे दो पहले पार्टी को, उसके बाद आप अपना सेकेंडरी एविडेंस लेके आ जाए। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें हमें नोटिस देने की भी जरूरत नहीं थी, वो भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। Am I audible? I'm audible now? हाँ ठीक है। सो अब अगर मैंने किसी को नोटिस दिया कोई भी डॉक्यूमेंट लाने का, मैंने उसे बोला सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आओ कोर्ट में, और उसने मना कर दिया, he refused to bring that to the court. Now I am authorized to bring the secondary evidence. मैं सेकेंडरी एविडेंस लेके आ गया। अब ये प्रिजम्पशन करी जाएगी कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो वो बंदा नहीं लेके आया, जिसका सेकेंडरी एविडेंस मैं लेके आया, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्ट हुआ था, स्टैम्प हुआ था एंड इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। अब अगली पार्टी ये नहीं बोल सकती कि मैं तो लेके आऊंगा नहीं और तुम उसका सेकेंडरी एविडेंस लेके आओगे तो मैं बोलूंगा ये तो ड्यूली एग्जीक्यूटेड नहीं था, आई वांट टू रिबट इट। वो नहीं चलेगा। सो कोर्ट प्रिज्यूम करके चाहिए कि वो ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ था, तुम्हें चांस दी गई, तुम नहीं लेके आए। अब वो जब सेकेंडरी एविडेंस लेके आ रहा है तो एटलीस्ट वो कुछ लेके आ रहा है, हम मान के चलेंगे कि वो सही है, ठीक है। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि कोई अगर गुंडागर्दी कर रहा है और अपने पास सब कुछ लेके बैठ गया है और दूसरे के पास किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं है उस चीज को प्रूव करने का, तो भाई उसे कुछ तो मदद दी जाए। तो कोर्ट उस प्रिज्यूम कर लेती है कि भाई ड्यू एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन, स्टैंपिंग हुई थी, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज द प्रिजम्पशन। अब 89 और 79 में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी 89 और 80। एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे। हाँ जी सर। Supposedly, I take a photocopy of a document and produce it in the court. Original is with the concerned authorities और जो भी है, तो वो 89 में shall presume का partially तो उसमें आ जाता है, लेकिन it may not be attested, stamped and executed, तो शायद court may not admit. नहीं, अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड, आप जो कॉपी ला रहे हो उस पे अटेस्टेशन एंड स्टैंपिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं अगर मैं कहीं से सर्टिफाइड कॉपी लेके आए किसी डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है। मैं जैसे है कोई कुछ मैटर रेज करता हूँ, डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता, देन आई गो टू द कोर्ट, ठीक है, और उसमें नोटिस देते हैं कि भाई ओरिजिनल तो इनके पास है, आपके पास है, यू आर रिप्रेजेंटिंग डिपार्टमेंट, आप नहीं लाते हो, मैं लेके आता हूँ लेकिन उसकी फोटोकॉपी है बट इट इज नॉट अटेस्टेड, वो पूरा तो नहीं आएगा उसका। हाँ, तो आप सेकेंडरी एविडेंस ना, नहीं, अब आप फोटोकॉपी अगर लेके आए हो और उस पे अगर दिखाई दे रहा है कि वो जाली है तो ऑब्वियसली कोर्ट फिर उसको नहीं मानेगी। हाँ नहीं, लेकिन जाली मगर अगर वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि देखो, अगर वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि अब आप सेकेंडरी एविडेंस जो लेके आए हो वो आपको ड्यूली फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेके आया तो आप कुछ भी बना के ले आए, ऐसा नहीं चलेगा। होना तो ऑब्वियसली वो अच्छी एक सर्टिफाइड कॉपी, समझ गया,
तो मेरा सवाल ये है, हाँ। भाई आपके पास ओरिजिनल है, आप नहीं दे रहे, मैंने आपको नोटिस दिया है, मैं ले आया वो उसकी जो एक्चुअल फोटोकॉपी थी, बट दैट इज, अच्छा इसमें यहाँ वो, लेकिन वो अटेस्टेड स्टैम्प नहीं थी और एग्जीक्यूटेड नहीं थी, तो क्या कोर्ट मानेगा इसमें? क्योंकि ये बोल रहा है ना 89 में, अगर उसके ऊपर सर साइन वगैरह और स्टैम्प वगैरह नहीं दिख रहा है सेकेंडरी के ऊपर, तो ऑब्वियसली कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये कहीं और से जाली कॉपी लेके आया है। मगर अगर वो एक सेकेंडरी कॉपी है जिसके ऊपर साइन भी दिख रहा है, स्टैम्प भी दिख रहा है, अटेस्टेशन भी दिख रही है, तो जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट ब्रॉट द ओरिजिनल विद यू, द कोर्ट विल नॉट से कि भाई ये लेकिन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं थी। एक चीज हो सकती है ना, क्योंकि देयर मे बी कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपके साइन और स्टैम्प में बी ऑन वन पर्टिकुलर पेज, मे नॉट बी ऑन ऑल पेज, ओके है ना? वुड दैट बी एक्सेप्टेबल? लेजिबल है लेकिन। सर देखो, प्रिजम्पशन तो रेज होगी, प्रिजम्पशन रेज हो जाएगी, उसके बाद भाई आप, लेकिन यार लेकिन लेजिबल है। हाँ लेजिबल होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर? मेरी आवाज आ रही है ना? इट विल बी अप टू द क्या बोलते हैं उसको, कन्विंसिंग ऑफ द कोर्ट, अगर लेजिबल कॉपी है तो। हाँ ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई। शैल प्रिज्यूम इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ना, तो रिबटल तो उसका आ ही सकता है। अगर आप कोई उल्टी सीधी चीज लेके आए तो उसे रिबट किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब आता है 90 बात करता है 30 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स की, और 90A बात करता है 5 साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। तो जब नॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं, कागजी रिकॉर्ड्स हैं, तो 30 साल पुराना अगर है तो हम मान लेंगे कि उसमें जेन्युइन है, उसकी जेन्युइननेस को हम मान लेंगे। और जब वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो 5 साल पुराना है तो हम मान, ठीक है। तो what it says is where any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in particular case considers proper. First ingredient is proper custody. कस्टडी प्रॉपर होनी जरूरी है। कहाँ कोई बिल्कुल ही सड़क से उठ के आ जाए कि सर ये देखो इनके घर की तो मेरे पास पड़ी है डीड, दैट्स नॉट प्रॉपर कस्टडी। या वो बोले कि मैं किसी और फलाने इंसान से लेके आया हूं जो who is not the person who should be having the custody of that certain document, that it's not proper custody. इसके examples illustrations इस सेक्शन में दिए गए हैं कि क्या प्रॉपर कस्टडी होती है और क्या नहीं होती। Then the court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of such particular person is in that person's handwriting, and in that case of a document executed or attested that it was duly executed and attested। तो दो चीजों की प्रिजम्पशन हो रही है, एक जिसका साइन है वो उसी के हैंडराइटिंग में है, और दूसरी चीज executed and attested है by the person whom it purports to be executed and attested। So हमने 4 चीजें मेन देखी। एक 30 साल पुराना होना चाहिए, दूसरी चीज प्रॉपर कस्टडी में से निकालोगे, तीसरी चीज प्रिजम्पशन किस चीज की होगी, presumption is going to be of the handwriting of the person who has signed it, and the second presumption, if it is applicable, will be of due execution and due attestation। एक्सप्लेनेशन कहता है डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर कस्टडी को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन सेज डॉक्यूमेंट्स आर सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ दे आर इन प्लेस इन विच एंड अंडर द केयर ऑफ द पर्सन बाय हुम दे वुड नेचुरली बी। ये इस पे एमसीक्यू बनता है, इस पे कई बार एमसीक्यू आता है कि प्रॉपर कस्टडी किसको कहेंगे, जो इसके पास पहली बार वो डॉक्यूमेंट गया, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को प्रॉपर कस्टडी कहेंगे, या उसको प्रॉपर कस्टडी कहेंगे जिसके पास वो नेचुरली होना चाहिए। तो हम लगाएंगे किस चीज को, नेचुरली को, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको गवर्नमेंट लगा देते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर कस्टडी उसकी होगी जिसके पास नेचुरली को होना चाहिए। अगर इफ इट्स अ विल ऑफ समन्स फादर और मदर और हुएवर, तो प्रॉपर कस्टडी उसी के पास होनी चाहिए। इट शुड द प्रॉपर कस्टडी शुड नॉट बी विद
any stranger, but maybe this person is going somewhere and he is suspicious of his brothers and sisters, and in that course he gives that will to his friend, to one of his friends. तो ये भी एक प्रॉपर कस्टडी है क्योंकि उसको वो एक्सप्लेन कर पा रहा है सर्कमस्टांसेस, ठीक है. सो they would naturally be, but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin. जो मैंने अभी बात करी, if there's a legitimate origin, because I had a proper reason, I gave it to my friend because I was suspicious that my brothers and sisters would do something to it, destroy it or take it away or alter it, tamper it, anything. So there's a legitimate origin. The origin is from my custody and I've given it to my friend with a due reason. Or if the circumstances of the particular case are such as to render the origin probable. Same बात. This explanation also applies to section 81, जहाँ पे हमने न्यूज़पेपर्स की बात करी थी. न्यूज़पेपर्स भी सही जगह से अगर लेके आ रहे हो प्रॉपर कस्टडी वाली, that will also apply. ठीक है. 90A में सेम चीज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में, बस 30 साल की जगह 5 साल लग जाएगा. That's it. Exactly the same. Now it's 9:17. We had started a little late. To be very fair, we had started 15 minutes late. तो हमारा टाइम 9:45 तक जाना चाहिए. So it's upon you guys if we want to move into the next chapter or not. छूटते ही मना कर देते हैं. छूटते ही मना. चलो ठीक है फिर. Let's let it be then. यहाँ पे छोड़ देते हैं. But we are going very slow in Evidence Act. We had to complete it in 2 or 3 classes. एनर्जी लेवल नहीं है ना, एनर्जी लेवल नहीं है आपके जीवन चेक करिए सर, थोड़ा बढ़ाओ एनर्जी लेवल है आपका. मेरे को तो सर आदत पड़ गई ना. मेरे को आदत वैसे व्हाट आई हैव सीन इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज टीचर्स बहुत बार कहते हैं, सोनिया मैम को पता होगा, टीचर्स कहते हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लो होनी चाहिए. बट वैसे जो रिसीविंग एंड होता है ना वो ज्यादा थकता है, बिकॉज हम एक्टिवली एनर्जी लगा नहीं रहे होते, तो थोड़ा स्लीप इंड्यूस जल्दी होती है या आलस जल्दी इंड्यूस होता है. दैट्स थोड़ा सा उसमें लफड़ा है. नाउ दैट आई हैव आल्सो स्टार्टेड डिलीवरिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप ही एक्टिव हो जाता है. एनीवेज, तो do we want to just take a recap of the next chapter without actually dealing with anything so that just we know कि उसमें है क्या. ठीक है, ठीक है. So chapter 6 आ जाता है of exclusion of oral by documentary evidence. इसके ऊपर हमने 2-3 sections देखे थे जो important इसके साथ relate करते. पहला हमने 22 देखा था जहां पे बात करी गई थी कि oral evidence क्या दिया जा सकता है, contents of documents का नहीं दिया जा सकता. ठीक है, 22 पहला section था. उसके बाद हमने 59 से लेके 65 तक वो सेक्शंस देखे जिन्होंने कहा कि सर बेस्ट एविडेंस लेके आओ. बेस्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस. अगर तो आप बात कर रहे हो डायरेक्ट एविडेंस की, तो वो होना चाहिए जिसने सुना वो आके बताए कि हाँ जी मैंने सुना, जिसने देखा वो आके बताए हाँ जी मैंने देखा. ठीक है, 59, 60 ये सारी चीजें बता देता है. उसके बाद आ जाता है 61 से लेके 65 तक जो हमें बताता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. उसमें भी वो कहता है सर बेस्ट एविडेंस लेके आओ. बेस्ट है कौन सा? ओरल में बेस्ट है डायरेक्ट, डॉक्यूमेंट में बेस्ट है प्राइमरी. अब जब हम इन सारी चीजों में से ये सारी चीजें समझ जाते हैं, ये आता है जनरल रूल, सबसे बड़ा रूल, कि नॉर्मली जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो ओरल को वो एक्सक्लूड कर देगा. जब आपके पास आप कहते हो कि हाँ ये एक कागज में लिखा हुआ है, ये बात एक कागज में लिखी हुई है, तो अपने मुंह से मत बोलो चुप रहो, बिकॉज दैट्स नॉट एडमिसिबल. यू कैन नॉट ब्रिंग दैट टू द कोर्ट. ये चीज 91 में लिखी गई है और इसका एक्सेप्शन 92 में दिया गया कि ओरल आप कब कब ला सकते हैं, जिसके अंदर 6 प्रोवाइजो दिए जाते हैं, जिसमें अगर भाई फ्रॉड वगैरह हुआ है, डिसेप्शन वगैरह हुआ है, सब्सिक्वेंट ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उससे पहले कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसी कुछ सिचुएशंस है जिनमें आप ओरल एविडेंस भी ला सकते हैं. ठीक है, सो 91 जनरल रूल, 92 एक्सेप्शन. अब उसके बाद 93 से हमारे कुछ एक्सटेंशंस शुरू हो जाते हैं कि कब कब ओरल एविडेंस आएगा. तो एक तरह से आप मान सकते हो कि 91 जनरल रूल है,
92 एक बड़ा एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन है, और फिर 93 से लेके आगे तक छोटे छोटे एक्सेप्शन है। अब ये छोटे छोटे एक्सेप्शंस में क्या है, जैसे 93 और 94 को हम प्यार से बोलते हैं लेटेंट एम्बिग्विटी एंड पेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट का मतलब होता है जो सामने सामने है, लेटेंट का मतलब होता है जो सामने नहीं है। जब एक पेटेंट एम्बिग्विटी आपके सामने है, दिखाई दे रहा है कि भाई कुछ गलत है इस डॉक्यूमेंट में, तो आप कोई ओरल एविडेंस से उसको सप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो एक लेटेंट एविडेंस है, लेटेंट एम्बिग्विटी है, लेटेंट डिफेक्ट है, तब आप उसमें ओरल एविडेंस ला सकते हैं, क्योंकि भाई मैं जिस टाइम पे मैं देख रहा था उस एविडेंस को, उस टाइम पे मेरा दिमाग नहीं उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकता था, बिकॉज इट वाज लेटेंट, इट वाज नॉट पेटेंट। नाउ दैट आई हैव डिस्कवर्ड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, तो अब मैं ओरल एविडेंस दे सकता हूं। 93 और 94 लेटेंट एंड पेटेंट हो जाता है। अब उसके बाद आता है 95। 95 बोलता है एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग इन रेफरेंस एज टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स हैं वो लिखे तो कुछ हैं, मगर जो रियलिटी है उससे मेल नहीं खा रहे। मैं बोलता हूं कि मैं अपना 521 फीट और व्हाटएवर डायमेंशन वाला स्क्वायर फीट वाला घर जो कोलकाता में है वो टंडन सर को बेचना चाहता हूं, या बेच चुका हूं, या गिफ्ट कर चुका हूं। बट पता चलता है कि मेरा कोलकाता में तो 521 फीट का घर नहीं है, मगर हाँ कोलकाता के आसपास कहीं पे मेरा एक 521 फीट का घर है जिसका मैंने सेल डीड करी। Although it is unmeaning in reference, but I can supply it with oral evidence कि यार गलती से मैंने कोलकाता लिख दिया था, मैं हावड़े की बात कर रहा था, या किसी और फरुखाबाद की बात कर रहा था, या किसी भी और जगह की बात कर रहा था। तो अनमीनिंग इन रेफरेंस का ये मतलब है लिखा कुछ है मगर रियलिटी कुछ और है। तो उसको आप सप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो 95 बताता है। ठीक है, तो 91 जनरल बड़ी बात, 92 जनरल बड़ा एक्सेप्शन, 93 94 लेटेंट एंड पेटेंट, 95 unmeaning in reference, 96 when the application of languages which can कॉल्स इतनी आती है ना, तो अभी आ रही है ना आवाज? ठीक है। सो अब 96 कहता है कि कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी बात लिखी गई है जिसकी एप्लीकेशन एक से ज्यादा लोगों पे या ऑब्जेक्ट्स पे हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ा ही अच्छा है, इसके सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते ही हमें समझ आ जाते हैं, तो उसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ कि मैं अपना एक सफेद घोड़ा बेचना चाहता हूँ। अब मेरे पास 5 सफेद घोड़े हैं, कौन सा है उनमें से सफेद घोड़ा जो मैं बेचना चाहता हूँ? तो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट माय लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट अप्लाइज टू, बट ऑब्वियसली उसमें लिखा है मैं एक अपना व्हाइट घोड़ा बेचना चाहता हूँ। अब कौन सा घोड़ा, उसको मुझे बस बताना है कि ये वाला घोड़ा था, मैं उसको फिर ओरल से सप्लाई कर सकता हूँ। दैट इज 96। 97 is evidence as to application of language to one of two sets of facts to neither of which the whole correctly applies। अब वही वाली बात हो गई, मैं कहता हूं कि मैं 521 गज का जो घर है जो हावड़ा में, वो बेचना चाहता हूं। अब मेरा हावड़ा में तो कोई ऐसा घर नहीं है, कोलकाता में मगर है 521 गज का। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल देखोगे, ए अग्रीज टू सेल टू बी माय लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। A has a land at X but not in occupation of Y, and he has a land in occupation of Y but not at X। कहता है कि मैं X जमीन बेचना चाहता हूं जो Y के कब्जे में है, इस समय Y उस पे टेनेंट है, मगर उस टाइम पे उसकी X पे कोई जमीन है। एक तो X पे कोई जमीन है जिसपे Y ऑक्यूपेशन में नहीं है, और जिस जमीन पे जो उसकी एक जमीन है जिसमें Y ऑक्यूपेशन पे है वो X जगह पे नहीं है। तो ऐसा मिसमैच हो रहा है। 97 मिसमैच की बात करता है, उसको आप सप्लाई कर सकते हो कि भाई मैं ये वाले की बात कर रहा था, ठीक कर लेते हैं इसको। फिर आता है 98 जहां पे इलेजिबल कैरेक्टर्स हैं, दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है, टूटा फूटा कुछ लिखा हुआ है, या फिर क्रिप्टिक मैनर में लिखा हुआ है।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डॉक्यूमेंट में कैजुअली लिखता हूँ आई वॉन्ट टू सेल माई लैपी। अब मैं लैपी से लैपटॉप बोलना चाह रहा हूँ, या मैं अपना लैपटॉप बोलना चाह रहा हूँ, या मैं अपना लैप समथिंग लैप टेबल बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ। तो इफ माई लैंग्वेज इज इलेजिबल और इट इज क्रिप्टिक, तो वो 98 से गवर्न होगा, वहां पे हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इस चीज की बात होती है। फिर 91, अब 98 तक हमने सारी बात कर ली, कहाँ कहाँ ओरल वगैरह आ सकता है। 99 जो है उसको हम सेक्शन 17 से 21 वाली जो रेंज थी ना उसके साथ जोड़ देते हैं, ये नुसरत सर ने जुड़वाया था कि इन सारी चीजों का अग्रीमेंट, जो ये सारे एविडेंस ऑफ अग्रीमेंट है, इन चीजों का एविडेंस कौन दे सकता है। तो एविडेंस कोई भी ऐसा दे सकता है जो भले ही डॉक्यूमेंट की पार्टी ना हो मगर किसी ना किसी तरह उस चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो 99 उसकी बात करता है और 100 बात करता है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, वहां की इंडियन सक्सेशन एक्ट इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप चलती है, उसमें आप ये सारी चीजें मत डालो। तो सर इसमें मतलब आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, इसमें अगर कोई एजेंट है, मतलब अभी जैसे हॉर्स वाली बात है कि 5 हॉर्स है, आपकी इंटेंशन कौन से हॉर्स की बेचने की आप वो प्रूव करना चाहते हो, तो एजेंट उसके लिए एविडेंस दे सकता है, मतलब ऐसे? अगर उससे रिलेटेड है और कोई फैक्ट वो जानता है अपनी नॉलेज से तो बिल्कुल दे सकता है। और फिर वहां पे अगर कुछ मैलअप आईडी है तो फिर वो कैसे प्रूव करेंगे? एविडेंस से प्रूव करेंगे, वो तो प्रूव करनी पड़ेगी, एविडेंस लेके आना पड़ेगा ना आपको कि मैलअप आईडी है या नहीं है। अब हम जैसे इंटेंशन की बात करी सेक्शन 14 में कि आप इलवेल वगैरह किसी चीज से अगर दिखा सकते हो, मोटिव दिखा सकते हो 8 में, या आप किसी भी तरह का इंटेंशनल या एक्सीडेंटल थिंग दिखा सकते हो 15 में, ऐसी ऐसी जो हम आप तथ्य सामने लेके आओगे उन चीजों से आप प्रूव करोगे देखो मैलअप आईडी है यहाँ पे, ये जो है इसने पैसे खा रखे हैं, आप दिखाओ कि हाँ इसने पैसा लिया है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर किसी और ने इनको बात करते हुए सुना है कि भाई इसका बेवकूफ बनाते हैं, या तू मेरा साथ दे मैं तेरे को इसमें से आधा पैसा तेरे को दे दूंगा, ऐसी आप एविडेंस लेके आते हो, तो वो एविडेंस लेके आओगे तो यू विल बी एबल टू प्रूव मैलअप आईडी। So it's just a part of the transaction, right? मतलब to prove that, मतलब it's not the everything. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट 91 to 100, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं ये, तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, सारे ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल हमने एविडेंस ज्यादा ही डेप्थ में पकड़ लिया, पता नहीं आईपीसी कब शुरू होगी। चलो एनीवेज वी विल ट्राई कि हम अगले वेडनेसडे के बाद एविडेंस You are doing a yeoman service to all people in your class by teaching you this evidence. बहुत बढ़िया कवर कर। I really enjoy sir, आप लोग यहाँ पे आके पढ़ाना तो I am working on it for at least 6-7 hours last night I was working on it। तो जजमेंट्स वगैरह पढ़ना, जो आगे मैं चीजें कनेक्ट कर सकता हूँ, एग्जांपल्स निकालना, बड़े अच्छे अच्छे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। I enjoy it myself। मोदी को ही कॉल करके पूछना पड़ेगा भाई साहब क्या कनेक्ट है, इतने एनर्जी लेवल का देहरादून भेजी हुई है। चलो ठीक है सर, सो आई होप नो क्वेश्चंस तो किसी को होते ही नहीं है हमारी क्लास में, टंडन सर के अलावा किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होता। चल ठीक है, तो आई थिंक वील रैप इट अप हियर, वी आर राइट। अरे एक्सपर्ट है भाई, आज पहली बार हो रहा है हम 9:30 पे बंद कर रहे हैं, 9:29 पे कर रहे हैं, सब इतने खुश हैं। A very